Students, today we are going to start chapter 14, respiration in plants, from the unit plant physiology. Now, what is respiration? In your lower classes, all of you have read or learned the definition of this term. Respiration, it is the process in which an organism take in oxygen, then that oxygen is combined with food and that releases the energy and carbon dioxide. This is the definition of respiration. And as we all know that all living organisms respire, so as this is the chapter from plant physiology, we will be concentrated on the topic respiration in plants. Now, whenever we breathe in, we take in air, and which is essential for our life. Now, the question comes then, why do we breathe, or what happens, or why is it necessary for the all living organisms to breathe? Whether the organisms are plants or animals or microorganisms, all living organisms present on the earth breathe. Now, as we know that whenever we take food, and that food is digested, that food releases the energy. But whether the energy is just release after the digestion, क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ क्या खाना जो है वो डाइजेस्ट हो गया, उसने एनर्जी रिलीज कर दी? नो, energy is released by the food only when this food is oxidized in the presence of oxygen or presence of air. यानी फूड जो है बॉडी ने डाइजेस्ट कर दिया, अब ये एनर्जी तभी देगा जब उसको क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी. नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ द एनर्जी? एनर्जी की क्या ज़रूरत है? हमारी बॉडी जो है बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस करती है, चाहे वो प्लांट्स की बॉडी हो या फिर एनिमल्स की बॉडी, और सभी की बॉडी में जो भी लाइफ प्रोसेसेस यानी फंक्शनिंग हो रही हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है या मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, ब्रीथिंग है या फिर एब्जॉर्प्शन, यानी किसी भी वर्क के करने के लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. नाउ फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी विल कम? एज वी नो दैट वेन एवर वी टेक फूड, हम कहते हैं कि ओहो खाना नहीं खाया सो आई डोंट हैव एनर्जी. बट इन एक्चुअल क्या ऐसा है कि जस्ट खाना खाना जो है वो एनर्जी दे देगा? नहीं. दिस एनर्जी विच इज़ वी डिराइव फ्रॉम द फूड, in actual the oxidation of food takes place and that releases the energy. Now the question comes, because as this chapter is with respiration in plants, so do plants also eat? And from where do they get the energy? Yes, plants also eat. How plants prepare their food? All of you know that they prepare their food by the process of photosynthesis. नाउ चलो फोटोसिंथेसिस उन्होंने कर लिया. अब ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो क्या ब्रीथिंग और फूड की एनर्जी रिलीज होने में कोई रिलेशन है? अगर हम जनरली देखें तो डाइजेशन और रेस्पिरेशन दो बहुत ही डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक क्लोज रिलेशन है. एंड दैट रिलेशन इज दैट वेन एवर द फूड इज डाइजेस्टेड, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल फॉर्म्स, then that digested food or the food which is present in soluble form is oxidized. यानी जो भी हमने खाना खाया या जो प्लांट्स ने फूड सिंथेसाइज किया, अब उस फूड की ऑक्सीडेशन होगी, एंड दैट ऑक्सीडेशन मीन्स कि वो फूड इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, एंड इन दैट प्रोसेस ओनली द एनर्जी विल बी released, and that energy is used by the living organisms, whether the plants or animals, for doing their functioning. Now we have read or we know about the various life processes like transportation, excretion, reproduction. All these are the various life processes, and for all these life processes what is required? Energy, and it is released by the oxidation of macromolecules. It is written here, oxidation of macromolecules. Macromolecules यहाँ पर फूड के लिए यूज़ किया गया है, जो हमारा फूड या जो प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर किया, एंड ऑक्सीडेशन मीन्स इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन. Now, green plants and cyanobacteria. Cyanobacteria means blue-green algae. These cyanobacteria and plants, they are able to prepare their own food, and they prepare their food by the process of photosynthesis. They will trap solar energy and they will convert that solar energy into chemical energy, and that energy will be stored in the plants in the form of carbohydrates, glucose, sucrose and starch. प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, बट जो एक्सेस ऑफ फूड होता है दैट इज स्टोर्ड इन द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च.
अब अगर हम बात करें ग्रीन प्लांट्स की भी, तो ऑल पार्ट्स आर नॉट एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि जहाँ पर भी क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल प्रेजेंट है, सिर्फ वही पार्ट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं दे आर नॉट एबल टू डू फोटोसिंथेसिस, यानी नॉन ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनको भी क्या करना है, दे आर ऑल्सो इन द नीड ऑफ एनर्जी। अब उन नॉन ग्रीन प्लांट्स को कहाँ से एनर्जी मिलेगी, जब जिन ग्रीन पार्ट्स ने यानी कि लीव्स ने या ग्रीन स्टेम ने जो फूड प्रिपेयर किया, दैट विल बी ट्रांसलोकेटेड टू द अदर पार्ट्स, और जब वो ट्रांसलोकेशन हो जाएगी एंड देन ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस एंड देन एनर्जी विल बी रिलीज्ड. And when we talk about the animals, animals are heterotrophic, means they derive their food from other living organism, and then either they can derive their food by eating the plants. अगर प्लांट्स को खा रहे हैं तो डायरेक्टली एनर्जी मिल रही है, एंड इफ़ दे आर यूजिंग द मैन मेड प्रोडक्ट्स, या फिर जो है वो कोई एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, देन दे आर गेटिंग एनर्जी इनडायरेक्टली. हर्बीवोर्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोर्स जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं. देन व्हाट आर सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स जो हैं जिन्हें हम डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं. दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल फंजाई, फंगस, व्हाट इट डज, क्या करती है ये, कि जो है ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स से अपना फूड डिराइव करती है. लेकिन हम यहाँ क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स they are in the need of food. Now as this chapter is related with the respiration, and this respiration it is taking place in the cells, so what we will say, or which term we will use the term cellular respiration, क्योंकि respiration में breakdown of food हो रहा है cell के अंदर, and it is releasing the energy. Now one more thing here, energy is in the form of ATP. See, ATP is the energy currency. जिस तरह से हमें मार्केट से कोई चीज़ परचेज करनी है तो हम वहाँ पर मनी देते हैं, रुपीज़ देते हैं, इंडियन करेंसी की अगर हम बात करें. इन द सेम वे जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, इन्हें अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए क्या करना, किसको यूज़ करते हैं, वो ATP को. सो जब फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ, उसने एनर्जी रिलीज़ की, और जो ये एनर्जी है इट विल बी used for the synthesis of ATP, and this ATP will be stored in the body, and whenever there is requirement of the energy, this ATP will break down. So ATP is the energy currency of the cell. Now in the previous chapter we talked about photosynthesis, that photosynthesis takes place in the क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जहाँ फूड प्रिपेयर होगा. जबकि अगर हम फूड के डाइजेशन यानी ब्रेक डाउन की बात करें, नॉट डाइजेशन, यानी जब फूड जो है जब एनर्जी दे रहा है, तो ये जो रेस्पिरेशन टर्म है इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ व्हाट विल हैपन, जब फूड जो है जो कि ग्लूकोज है, अब यहाँ पर जो जहाँ लिखा हुआ है CC बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, यानी क्योंकि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, सो मीन्स 6 कार्बन एटम्स आर देयर. तो यहाँ क्या दे रखा है कि जो ब्रेक डाउन होगा इन बॉन्ड्स का, और थ्रू ऑक्सीडेशन जब इस फूड को ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये बॉन्ड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी. एंड बॉन्ड्स के जो ब्रेक होने से क्या रिलीज होगी, वहाँ पर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. और जो भी सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं, दे आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स मेनली जो हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दे रिलीज एनर्जी, but there are some of other substances in the food like proteins, fats and organic acids etc. They are also used as respiratory substance in some plants under certain conditions. Means in most of the conditions carbohydrates release the energy, but in certain conditions other components of the food they also release energy. Now this energy it is not released in a single step, क्योंकि अब तक जो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है हम लोअर क्लासेस में पढ़ते आए कि फूड जो है ऑक्सीजन मिली और ब्रेक हो गया और एनर्जी दे दी, बट इन एक्चुअल दिस इज़ नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस. यहाँ जो रिलीज ऑफ एनर्जी है इट इज़ अ
स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन, और किसी भी रिएक्शन को होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कैटलिस्ट की और एंजाइम्स की. व्हाट आर कैटलिस्ट और एंजाइम्स? दीज आर द केमिकल्स विच आर मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड दे एनहेंस द रिएक्शन. तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ फूड और एनर्जी रिलीज़ करने के लिए. और वहाँ क्या है? देर आर मेनी ऑफ द एंजाइम्स प्रेजेंट और मेनी स्टेप्स हैं जो इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगी. और फिर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में ट्रैप हो जाएगी? एटीपी के फॉर्म में. फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. नाउ दिस एनर्जी विच इज़ यूटिलाइज रिलीज्ड बाय द फूड, ऑक्सीडेशन हुआ फूड का, एनर्जी रिलीज हुई. ऐसा नहीं है कि उस एनर्जी को बॉडी इंस्टेंटली यूज़ कर लेगी. जो एनर्जी है वो अब किस में कन्वर्ट हो जाती है? एटीपी में. और जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो तब ये एटीपी जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. अब यहाँ एडीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. हेयर इट इज़ ट्राइफॉस्फेट, मीन्स यहाँ ट्राई था और यहाँ डाई. सो वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये ब्रेक हो गया and it will provide the energy. So whenever there is the need of ATP or the need of energy, ATP will break down and it will be converted into ADP plus IP, and this IP it will give the energy. So we can say that ATP is the energy currency of the cell, and for performing various functions this ATP is utilized. Now the next topic is, do plants breathe? अब क्वेश्चन लगा होगा कि प्लांट्स को ब्रीथ करने की क्या ज़रूरत है? प्लांट्स दे ऑलरेडी हैव, दे आर द ऑक्सीजन गिवर, और वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो उनको ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है? क्योंकि ब्रीथिंग का अगर हम देखें तो मेन पर्पज़ क्या है? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को देना. लेकिन प्लांट्स तो क्या कर रहे हैं? उनके पास तो खूब सारी ऑक्सीजन है, तो वाई दे विल टेक ऑक्सीजन? बट प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ. इन एक्चुअल प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. जब वो रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन क्या करते हैं? प्लांट्स लेते हैं एंड व्हाट दे गिव आउट? कार्बन डाइऑक्साइड. और फोटोसिंथेसिस के टाइम दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन. तो यानी कि प्लांट्स जो हैं दे हैव अ सिस्टम दैट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगी? वेन एवर प्लांट्स आर डूइंग फोटोसिंथेसिस they will be releasing oxygen. Now in plants, if we compare the plants with animals, plants do not have specialized organs for gaseous exchange. अगर हम human beings की बात करते हैं, animals की बात करते हैं, they have lungs for gaseous exchange. लेकिन plants के पास जो है इस तरह का कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन तो नहीं होता, बट दे हैव स्टोमेटाज एंड लेंटिसेल्स. नाउ व्हाट आर दीज स्टोमेटाज एंड लेंटिसेल्स? Stomatas are very minute openings present on the underside of the leaves. This is a leaf, and if we see the structure on the underside means lower side पर बहुत ही minute openings present होती हैं